गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम चैप्टर 8 के लास्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे विच इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सो एज वी हैव सीन द प्रोसेस ऑफ सेक्शुअल मैच्योरेशन is gradual and takes place while general body growth is still going on. So when a person enters into the age of puberty, not only the sexual maturation takes place but also the body growth continues, although the rate of growth of body it slows down. Therefore, some degree of sexual maturation does not necessarily mean that the body or the mind is ready for sexual acts or having and bringing up children. So attaining sexual maturity does not mean that the body of a female is ready to produce the children. So how do we decide if the body or the mind is ready for this major responsibility? All of us under are many different kinds of pressures about these issues. There can be pressure from our friends for participating in many activities whether we really want or not. Then can be the pressure from families to get married and start having children. So how do a person or a couple decide that they are ready for the responsibility of a child? Because bearing or raising a child is a huge responsibility and a person has to be completely prepared for it. So it is not necessary that there are many activities which are not good or maybe justified but are pressurized by friends. So we should be ourselves responsible. We should think ourselves and then get involved into those activities. And sometimes families can also pressurize for marriage and start having a children. But at the same time, governmental agencies, they may ask to avoid having children because, as you know, the population of the country is already increasing on a large scale. So there is always a campaign from the government side that there should be control in the population as much as possible, because overpopulation leads to many other problems in a country. Not in a country but also for a family. There are many responsibilities with bearing a children in a family. So having a lot of children but not having enough financial support for them can be a mental stress for the family. So there should be always a wise choice that when and how much children a couple is ready to raise. So with this sexual reproduction, there are many consequences like having many sort of diseases which are called as the sexually transmitted diseases. Now the diseases can be bacterial infections. जो diseases sexually transmitted disease बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी हो सकती है, मीन्स बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया जैसे कि गोनोरिया एंड सिफिलिस, या फिर वायरस की वजह से भी हो सकती है जैसे कि वॉट्स एंड HIV एड्स. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस दैट बिकॉज इन एग्जाम इट कैन बी आस्क्ड दैट गिव अ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज which is transmitted by bacteria, then it is gonorrhea and syphilis are the example, and for viruses it is warts and HIV AIDS. So you need to remember separately that which are bacterial infections and which are viral infections. So now a question is here, is it possible to prevent the transmission of such disease? क्या इन diseases का transmission को रोका जा सकता है during the sexual act? Then definitely there is using a covering called a condom for the penis during sex helps to prevent transmission of many of these infections to some extent. So this condom, which is also called as the mechanical barrier, it helps in the prevention of transmission of these infections. So in case a question is asked that how can you prevent the transmission of sexually transmitted disease, then the answer will be condom. The sexual act always has the potential to lead to pregnancy. Pregnancy will make major demands on the body and the mind of the woman. So sexual act always have the potential to lead to a pregnancy, and a woman should always be ready from her mind and her body for pregnancy. And if she is not ready, and if a girl or a girl is not ready for being a mother, then her health may be severely affected. So therefore many ways has been advised to avoid pregnancy. These contraceptive method means
the ways by which pregnancy can be avoided, that is called as the contraceptive method. So there are various contraceptive methods which are available. One category is the creation of mechanical barrier so that the sperm does not reach the egg. So मैकेनिकल बैरियर में क्या है कि एक इस तरीके का कोई बैरियर बना दिया जाए, एक रुकावट बना दी जाए कि जो स्पर्म सेल है वो एग तक ना पहुंच पाए. तो जो मेल्स का एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, दैट इज पेनिस, दे आर कवर्ड विद कॉन्डम्स और समथिंग विच आर सिमिलर to condoms. So when the sperm cells are released, they are unable to reach the egg cell. So condoms on the penis or similar coverings worn can prevent the entry of sperm into the sperm from reaching the egg cell. Similarly, these condoms are available for females also, where the female put the condoms inside the vagina, and it can serve the same purpose, that sperm is unable to reach the vagina. So first we can say that mechanical barrier एक टाइप के contraceptive devices होते हैं, contraceptives होते हैं जो कि sperm और egg को मीट करने से रोकते हैं. तो जैसे इसमें एग्जाम्पल है कॉन्डम्स का. नाउ कॉन्डम्स दे आर अवेलेबल फॉर बोथ फीमेल एंड मेल. इन males it is put over the penis and in female it is put over the vagina. This you have to remember. Now another category of contraceptive acts by changing the hormonal balance of the body. एक और टाइप के कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं जो क्या करते हैं, बॉडी का हार्मोनल बैलेंस चेंज कर देते हैं. जो बॉडी में केमिकल्स जिनको हम हार्मोन्स कहते हैं उनके बैलेंस को चेंज कर देते हैं, सो दैट द एग्स आर नॉट रिलीज. जिस टाइम पे एग रिलीज होने होते हैं उस टाइम पे एग को रिलीज नहीं होने देते ताकि फर्टिलाइजेशन हो ही ना, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो प्रेगनेंसी भी नहीं हो गई. लेकिन ये ड्रग मेनली कैसे लिए जाते हैं, ओरली लिए जाते हैं, मीन्स माउथ से लिए जाते हैं, एज पिल्स दवाइयों की तरह माउथ से लिए जाते हैं. लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट होता है. हाउएवर सिंस दे चेंज हार्मोनल बैलेंसेस, जब भी किसी भी हार्मोन के साथ छेड़छाड़ की जाएगी तो हमेशा उसका साइड इफेक्ट कुछ ना कुछ होता है, चाहे वो कम हो चाहे ज़्यादा हो. तो ये जो पिल्स होती हैं इनका साइड इफेक्ट भी पाया जाता है. तो इनको हम केमिकल बैरियर भी कह सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो ये पिल्स होते हैं इसमें कुछ केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है ये वर्क करता है. ये हार्मोनल बैलेंस को चेंज कर देता है, तो इसीलिए इसको केमिकल बैरियर भी कहा जाता है. अदर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस सच एज लूप और द कॉपर टी आर प्लेस्ड इन द यूट्रस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी. अब कुछ डिवाइसेस ऐसे होते हैं जैसे कि लूप हो गया या कॉपर टी हो गया, इसको यूट्रस में डाल दिया जाता है फीमेल के ताकि प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सके. लेकिन अगेन इसका दे कैन कॉज साइड इफेक्ट. इसका भी साइड इफेक्ट है कि वो यूट्रस में इरिटेशन कॉज कर सकते हैं. जब कोई डिवाइस अगर यूट्रस में पड़ा रहेगा तो क्या होगा, उससे इरिटेशन कॉज हो सकती है. देन इफ देर आर सम अदर मेथड्स ऑल्सो, लाइक इफ द वास डेफरेंस इन द मेल इज ब्लॉक्ड, sperm transfer will be prevented, right? Now there are other methods also, like if the vas deferens in the male is blocked, sperm transfer will be prevented. अब जो टेस्टिस से आपने पीछे जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था तो आपने देखा था कि ये जो टेस्टिस के अंदर स्पर्म बन रहा है वो वास डेफरेंस से फाइनली यूरिथ्रा के पास पहुंच रहा है. तो अगर इस वास डेफरेंस को ही कट कर दिया जाए तो स्पर्म सेल जो है वो यूरिथ्रा तक पहुंच ही नहीं पाएगा. तो इस तरीके से जो स्पर्म सेल है वो एग सेल तक पहुंच ही नहीं पाएगा और फर्टिलाइजेशन होगी नहीं. इस प्रोसेस को वाजेक्टॉमी कहा जाता है. वाजेक्टॉमी मीन्स cutting of the vas deferens. Then similarly it is available in female also. In if the fallopian tube in the female is blocked, फीमेल में आपने देखा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ओवरी से जो ये रिलीज हो रहे थे एग सेल, वो कौन रिसीव कर रहा था, ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब जिसको कहते हैं. तो अगर इन्हीं को कट करके टाई कर दिया जाए तो जो एग सेल है वो पहुंच ही नहीं पाएगा बाहर. तो अगर स्पर्म सेल फीमेल ट्रैक में एंटर भी कर जाता है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी. और
इस तरीके से फीमेल की अगर फीमेल की फेलोपियन ट्यूब को अगर ब्लॉक कर दिया जाए तो एग जो है वो पहुंच नहीं पाएगा। ठीक है, तो इनको हम कौन से मेथड्स कहते हैं? सर्जिकल मेथड कहते हैं, क्योंकि ये मेथड सिर्फ सर्जरी की हेल्प से हो सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, वास डेफरेंस और फेलोपियन ट्यूब्स को कट करके टाई कर दिया जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि ये कटिंग होती है इसलिए इसको सर्जिकल मेथड कहते हैं। लेकिन सर्जिकल मेथड खुद में इनका ड्रॉबैक क्या है? जबकि सर्जिकल मेथड सेफ होते हैं लॉन्ग रन के लिए, मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट इनके नील चांसेस होते हैं कि इस मेथड में कोई फेलियर होगा। बट इसकी में प्रॉब्लम क्या है, अगर सर्जरी ढंग से परफॉर्म नहीं हुई तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, इन्फेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। सर्जरी कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। And one more thing, this vasectomy and tubectomy once done, they are irreversible, means that male or female will remain sterile, means that male or female will not be able to produce children once they have undergone vasectomy or tubectomy. Now, surgery can also be used for the removal of unwanted pregnancy. These may be misused by the people who do not want to a particular child, as happens in the illegal sex selective abortion of female fetuses. तो सर्जरी की वजह से सर्जरी का कई बार मिसयूज़ भी किया जाता है। जैसे कई बार कुछ लोगों की ये सोच होती है कि फीमेल है तो उसको मार देना चाहिए, उनको वो बोझ लगती है, तो इस वजह से वो उनको मार देते हैं, फीमेल, जिसको फीमेल फीटिसाइड कहते हैं। तो इसका मिसयूज़ भी किया जाता है। तो क्योंकि इतनी ज़्यादा फीमेल फीटिसाइड आज भी इंडिया में एग्जिस्ट करती है, इस वजह से जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है, मतलब नंबर ऑफ फीमेल ओवर नंबर ऑफ मेल, वो आज भी कम है। फीमेल्स आज भी कम है एज पर दी मेल इन आवर कंट्री। तो इसी को देखने की वजह से गवर्नमेंट ने बहुत टाइम पहले ही प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन को प्रोहिबिट कर दिया था बाय लॉ। मतलब ये एक गुनाह है कि जब तक एक बच्चा जन्मा नहीं जाता उससे पहले अगर उसका सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाए कि वो मेल है या फीमेल है, तो वो एक ऑफेंस है एज पर द लॉ। तो रिप्रोडक्शन जो है इसके लिए ऑर्गेनिज्म को मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है एंड ये पॉपुलेशन को इंक्रीज करता है। और एक पॉपुलेशन का साइज़ क्या डिटरमाइन करता है, कैसे डिटरमाइन होता है? एक पॉपुलेशन का साइज़ कैसे डिटरमाइन होता है कि उसमें बर्थ रेट और डेथ रेट कैसा है। अगर बर्थ रेट ज़्यादा होगा डेथ रेट से तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी। अगर डेथ रेट कम होगा, अगर डेथ रेट ज़्यादा होगा बर्थ रेट से तो पॉपुलेशन जो है डिक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन हमेशा जब भी एक कपल को फैमिली प्लानिंग करनी होती है तो हमेशा हर चीज़ को दिमाग में रख के, अपनी सारी कंडीशंस को दिमाग में रख के, एंड दैट कपल शुड बी मेंटली प्रिपेयर टू रेज अ चाइल्ड। एंड पॉपुलेशन कंट्रोल जो है वो हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? क्या होता है, इनफर्टाइल कपल जो होते हैं, व्हाट दे डू, दे गो फॉर वेरियस मेथड्स by which they try to bear their own child. There are many infertility clinic which work and which helps in guiding an infertile couple to produce children. लेकिन इस चीज़ को एक इस नज़रिए से भी देखा जा सकता है कि हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बच्चे हैं जो कि ऑर्फन एज में रहते हैं, एंड अगर हर एक इनफर्टाइल कपल इन ऑर्फन बच्चों को अडॉप्ट कर ले तो हमारे देश में इन ओवर पॉपुलेशन की प्रॉब्लम भी सॉल्व होने में काफ़ी मदद मिलेगी, और सेकेंडली इन बच्चों को भी एक अच्छा घर मिल पाएगा। सो this was all about the reproductive health. I hope this topic is clear to you, and with this chapter number 8 is finished. Thank you.